my screen? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So if you will type UMA 003 in Google, you will get the first page as this. आप अपना प्लीज मोबाइल में या जहाँ पे भी हो आप टाइप करो UMA 003. So this was a code that was of mathematics 1 previously. Now it has been updated to 010. तो आप जस्ट ये 003 टाइप करो. आपका जो पहला लिंक आएगा यू नीड टू प्रेस दिस वन and then you will see a page like this and just you can press the first icon and it will redirect it towards the website which is the course website. Now can you see this everyone? अगर आप मोबाइल में कर रहे होगे तो एक छोटा सा इधर आपके लेफ्ट हैंड टॉप पे कुछ एक आइकन्स आएगा, उसको आप क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी. आप लोग को वेबसाइट मिल गया कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now you can see मैम एक बार रिपीट कर दो मैम. UMA 003 टाइप करो गूगल पे और जो पहला लिंक आया उसको ओपन करो. Okay. और उसमें भी जो फर्स्ट आइकन आया उस मतलब जो भी लिखा हुआ है उसको क्लिक करो. ये इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा आपको जो मैंने इधर शो किया हुआ है. So as you can see on my screen also, this course name is Mathematics 1 and the code of this course will be UMA 010. So sometimes आपको अगर ये सिर्फ कोड मिलता है like so then you will have to understand that this is talking about Mathematics 1. Now in your left hand side you can see here we have syllabus. The first one is syllabus. So you can go to this link and when you will click this just go to this second one because second one contains the syllabus also and from where we have to study it is given or it is mentioned over there. So just click on course handout. सबने ओपन कर लिया कोर्स हैंडआउट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so now in your course handout you can see that here the name of the topic which you need to cover and over here there is something which is written as reference textbook 1 और ये 8.1 से 8.2 8.3 that means that you need to go to textbook 1 that is this Thomas and Finney and you need to study all this section which is mentioned over here. So इस टॉपिक के लिए आपको 8.1 से 8.2 पढ़ना है. कौन सी बुक से? ये टेक्स्ट बुक 1 दैट इज थॉमस एंड फिने. मैं कैसे इसको आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो वो भी बताऊंगी. जस्ट अंडरस्टैंड दिस. सो in the first class we will start from this partial differentiation. We will not start with sequence and series. Instead we will start from this 1670 lecture partial differentiation. So we will first start with 12.1. ये क्लियर हो रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so now the thing is that you have your book, you know from where to study. इसमें आपको मेनली क्या करना है? टेक्स्ट बुक 1 लेना है और ये थर्ड वाला क्योंकि ये जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो आपको इधर दिख रहा होगा दैट इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक 3 और प्रैक्टिस के लिए आप 2 फॉलो कर सकते हो बट हम मतलब पढ़ाएंगे जो बेसिकली वो मेनली 1 से करेंगे एंड फ्रॉम 3 and you can use this for practicing problem. So now how we can get this book because you don't have library access or if you can't purchase then what you can do, you can go to this website Library Genesis. Just type this. If you can see in my screen, just type this in your like you can type in your Google either on the top where you on the top of the browser. So
Can you see this page? Yes, ma'am. Okay, now type, you have to type calculus, Thomas and Finney. You have to type this on your search screen and then you have to press this icon. सबने लिख लिया ये? Now I have pressed this icon. Now you can see that there are plenty of options, right? And in your book, you can see that we have mentioned 9th edition. देखो इसमें कोर्स हैंडआउट में 9th एडिशन लिखा हुआ है, तो 9th एडिशन ही हमें डाउनलोड करना है, क्योंकि दूसरा एडिशन आप डाउनलोड करोगे तो क्या होगा, ये इधर उधर मिल सकता है आपको। जैसे 12.1 उन्होंने क्या किया है कि जब प्रीवियस या उसके बाद वाली एडिशन लोगे तो हो सकता है 12.1 12.1 ना होके किसी और चैप्टर में पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है। सो टू गेट द करेक्ट मैपिंग you have to download this 9th edition only, which is prescribed. So in this, in library Genesis, you can see that my second option is this 9th edition only. Can you see? And I will click on this first mirror के अंदर में just first वाला आप button press करोगे. So you will get a page like this, and on the top you will see a get button. Now you will just have to press this get button and your download will get started. So किसी ने try किया इसको? चलो ठीक है, एक जन का हो गया ना वो। फिर मैंने इसीलिए आपको वेबसाइट बताई कि आपको कभी फ्यूचर में भी कभी जरूरत कोई बुक की पड़ेगी, you can go to this website and you can type your book name and you can get the PDF. अभी एक जन का हो गया, वो आपको सबको दे देगा, ठीक है? But in the future also, if you want to have the like the second book, if you want to download, you can write over here and you can download. So इसमें आप करोगे, मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा इसी पेज पे अचानक से वो आ गया है ना, लोड आ गया, इसी वजह से आप थोड़ी देर बाद ट्राई करोगे, you will get your book, right? अब जब बुक मिल गई, आपको पता है कहाँ से क्या पढ़ना है। अब दूसरा सेकंड काम आपका है, आपने GR सेलेक्ट किया है। सो हैव यू फॉर्म्ड एनी GR लाइक 1 2 3 4 5 6 का कोई GR होगा ना? Yes, ma'am. We have decided for group 4. You have decided for group 4. आप एक काम करो, मैं आपको मैम ग्रुप 2 also. Yes, ma'am. ओके, ग्रुप 1 में कोई डिसाइड 6 also. ओके ओके, आप लोग का ग्रुप 1 का कौन होगा? ग्रुप 1 GR कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो, he or she can be. Ma'am, it is Prachi. Ma'am, it is Prachi Garg for group 1. Okay, okay. So I am just giving you my number. What you can do is that जो भी GR है, एक मैथ्स का ग्रुप जस्ट क्रिएट करना, उसमें सिर्फ GR रहेंगे और मैं रहूंगी। तो whatever information I want to give, I will give it to GR, और आपका काम है कि आप अपने ग्रुप को सारा इंफॉर्मेशन पास करोगे। Is this okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is my number. Other people can also note, and if you have any problem or any doubt, you can ask me. But mainly, एक मिनट, ये मैंने सबको। So I have given you my number, and just form a group and add me. वो उसमें सिर्फ GR होने चाहिए। Now I will send you all these things to GR also, कि आपका कोर्स हैंड आउट और जो भी वेबसाइट है, इसमें देखना नीचे भी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। अभी सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके। सो जो लेट ज्वाइन किया था, आप ये वेबसाइट पे जाओगे, साइड में देखोगे आपके पास सारी चीजें इधर अवेलेबल होंगी इस वेबसाइट पे, जैसे सिलेबस, ट्यूटोरियल शीट। सो इफ यू विल सी दिस ट्यूटोरियल शीट, सिंस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम lecture 16-17, this would be our tutorial 5 will be our first tutorial. मतलब जब आपकी ट्यूटोरियल क्लास लगेगी तो ये पार्शियल डेरिवेटिव वाला आप पहले से डाउनलोड करके रख लेना और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आप कनेक्ट हो सको।
जब आपके क्लासेस खत्म होंगी, मतलब 1-2 क्लासेस लग जाएंगे. सो ट्राई दिस ट्यूटोरियल नंबर 5. डोंट गो टू दिस 1 2 3 4 क्योंकि ये अभी आपका बाद में कराया जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज. Now if you want to go Ma'am, your through, voice is breaking a lot. Your voice is lagging. मैम वॉइस ग्लिच कर रही है. You are not audible. okay, so just see that here you will find also the 5th point, exam activity. इसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर्स होंगे, जो भी ईएसटी यानी एंड सेमेस्टर टेस्ट और मिड सेमेस्टर टेस्ट के. So you can find all your question papers over here, and also you can find the study material in 4th number point. स्टडी मटेरियल में जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ लोगों के वीडियो लेक्चर्स और नोट्स अवेलेबल हैं. अगर आप लेक्चर नोट्स लेना चाहते हो तो आप ये 4th नंबर में डॉक्टर अंकुश पठानिया के आप लेक्चर नोट्स ले सकते हो. कैन यू सी दिस? इसमें क्या है, इसमें देखो Yes, ma'am. यस एक एक करके हर एक टॉपिक पे लेक्चर नोट्स बने हुए हैं. सो ये यूनिट 3 से जिससे हम स्टार्ट करेंगे उसमें भी लेक्चर नोट्स इधर बने हुए हैं. आप क्लिक करोगे आपको उसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा. ठीक है. So you have books, you have lecture notes. I will be also providing you video lectures. कुछ तो video lectures already uploaded है. अगर आपको interested हो तो ये सब में से भी आप देख सकते हो. Now if you have any problem regarding the syllabus or anything, कोई भी questions हो आपके दिमाग में regarding this course mathematics 1, you can ask. Then we will start with our lecture class, like for 3rd unit. Ma'am, can you tell again how to download the soft copy of the book? Just you have to go to this website. You can see the website. Yes, ma'am. This is the website. You have to write it, and then you have to type this book title, or you can just write Calculus Thomas and Finney. These are the authors, and just press this search button. और जैसे ही आप सर्च करोगे you will see a page. इसमें सेकंड वाला आप इधर से मिरर में पहला वाला जाके आप डाउनलोड कर सकते हो. और कोई डाउट? Ma'am, can you send the link of the sites on the chat? ओके, We have to download the third book. मैं आपको गेट वाला ही, ये वाला ही सेंड कर देती हूँ. फिर जस्ट गेट बटन प्रेस कर देना आप लोगों ने. Good morning, ma'am. यस Am I audible? यस. Ma'am, I just wanted to ask that questions that we practice in class, we need to do that in a rough copy or maintain a fair register for that? नो, you have to like कॉपी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए. ऐसा भी नहीं है कि बाद में आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लिखे हो, बट वो आपके. Ma'am, your voice isn't audible, ma'am. It's not audible. Now is it okay or? Ma'am, it's better. Okay, it's better. So I have sent you the link for the book. You can just press that and get your book. अगर और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताओ. मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए काम स्टडी मटेरियल या आप क्वेश्चन साइट से लेने ये बुक कोई रेफरेंस लेके? हाँ, आप स्टडी मटेरियल जैसे ये वाली वेबसाइट में भी आपको स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, या तो फिर आप क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस जैसे 3rd नंबर पे, इसमें भी क्या किया गया है, बुक का रेफरेंस दिया गया है. या थॉमस एंड फिने जो पीछे आपके दिखोगे आप अनसॉल्व्ड से होंगे. So you can solve the odd questions because the answer of odd questions are given at the back. तो आप श्योर रहोगे कि जो आप कर रहे हो आप ठीक कर रहे हो, और odd question लगा लोगे more than enough है. ठीक है. So कोई भी हम चैप्टर करेंगे उसके एक्सरसाइज पीछे होंगे अनसॉल्व से, उसको आपको क्या करना, odd वाले क्वेश्चन लेके सॉल्व करते रहना, और then you can check your answers in the back side of your textbook. Okay, so can you see my screen now?
I think now it is fine. It is showing full network. अब मत बोलना कि नहीं आ रही है अभी भी. अब ठीक है. अब ठीक है. ठीक है. So let's start with our third unit, that is functions of several variable and partial derivatives. Can you all see my screen? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. okay. Okay. Yes, ma'am. So firstly, we will discuss what is multivariable functions, and then we will see what are partial derivatives. So up till now, like in your 12th class, up to 12th class, you must have learned about single variable functions, right? आपके पास क्या होता है, एक y is equal to fx type का, like y is equal to x square. That means that it is a parabola. So till now you have dealt with the functions of one variable, and you might have discussed limits, continuity, differentiability, integration, and so on. Now we are going to extend our study to several variable. So in the several variables, बेसिक जो डेफिनेशन है वो तो सेम रहती है, लेकिन कैसे निकालते हैं लिमिट्स, कंटिन्यूटी, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. So why we are studying this several variable functions? Because you know that everything around us contains more than one variable. For example, if we want to calculate a volume of cylinder, कोई बता सकता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? IR square. IR square. IR square H. Here also you can see that we will have two variables R and H, because as we change R or H, our volume of cylinder will change. Another example, if we talk about paraboloid, this is a function of two variables. So more or less, whatever we see in reality contains more than one variable. So now we will study the functions about like having more than one variable. Generally हम आपके syllabus में 2 and 3 variables पे ही restricted रहते हैं, but whatever theory I will tell you for 2 and 3 variables is applicable for n variable also. So can you tell me what is functions? आपने functions कई बार पढ़े होंगे, so can you tell me what are functions? Relation between two sets. Relation between two sets. So can I say that every relation is a function? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That every output has a unique pre-image. Yes. So there is some restriction, like suppose that you have two sets, right? Set A and B, and if each element of A has a unique image in B, then it is called as function. ये नहीं है कि A के साथ अगर दो आ जाए, so this is not a function. So there are two restrictions. First of all, every element, कोई भी एक एलिमेंट इसमें छूटना नहीं चाहिए ए सेट में. अगर ये छूट गया है, जैसे इसको कोई इमेज नहीं मिल रही है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन. दैट मीन्स एवरी पॉइंट शुड हैव अ इमेज इन अदर सेट. अगर एक भी छूटा तो फंक्शन नहीं कहलाएगा. एंड सेकेंडली, इट शुड हैव अ यूनिक इमेज. It is not allowed that you have two different, like for 1, 2, 3, 5, name it like this, like one is going to 2 and one is going to 3 also. So this is not allowed. So each element will have a image and it should be unique, right? Obviously आपका जो है हो सकता है कि ऐसा हो कि 2 भी आपका इसमें जा रहा है, 3 भी आपका इसमें जा रहा है, बट 2 के लिए यूनिक है ना, 3 के लिए भी ये यूनिक है. इधर से 2 डंडियां नहीं जानी चाहिए, ऑब्वियसली इधर से ऐसे हो सकता है. अब सबको क्लियर है फंक्शन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so whenever we talk about function, we have domain and range. आपको पता है domain and range क्या होता है? So I will just ask you simple questions, like if my function is this, can you tell me what is the domain of this function? Or real numbers. All real number.
और रियल। हाँ, अब देखो कि ऑल रियल नंबर सिर्फ आप बोल रहे हो, तो वो जब आप सिर्फ इनपुट x का देते थे तब होता था ऑल रियल नंबर। अब कैसा इनपुट देना पड़ रहा है, x का भी देना पड़ रहा है, y का भी देना पड़ रहा है, तो हम थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाते हैं। वी राइट इट लाइक दिस, डोमेन शुड बी r स्क्वायर या r2, यानी कि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो 2 टपल्स का दे रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? बिकॉज पहले आप क्या करते थे, इनपुट एक x का देते थे, आपको आउटपुट मिल जाता था, राइट? अपनी तरफ से आप क्या करते थे, जस्ट आप वो जैसे x स्क्वायर y इज इक्वल टू x स्क्वायर, आप सिर्फ x को वैल्यू 1 देते थे, इधर आपको y पता चल जाता था, x की वैल्यू 2 y 4, तो अपनी तरफ से आप इनपुट 1 का देते थे। अब क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू z आ गया। अब आपको इनपुट 2 का देना पड़ेगा ना, x की भी वैल्यू बताओगे, y की भी, तभी तो आउटपुट आएगा। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. बस उसी का Yes, कंसेप्ट ma'am. को हमने एक्सटेंड ऐसे कर दिया कि अब हम लिखेंगे r स्क्वायर, दैट मीन्स दैट माय इनपुट आई विल गिव इट इन टर्म्स ऑफ लाइक पेयर्स, कि मुझे x बताओ y बताओ तब मैं z दूंगा। एक x बता दोगे तो नहीं होगा, तो रियल नंबर को ही r स्क्वायर कह दिया गया कि अभी मुझे 2 इनपुट चाहिए, राइट? सो दिस इज x y सच दैट x बिलोंग्स टू ऑल्सो रियल नंबर एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। So this will Ma'am, your what is हाँ? besides r square, is this 1 or I? नहीं, इसको ना ऐसे थोड़ा सा लिखते हैं रियल नंबर को डिनोट करने के लिए। आप देखोगे ना बुक्स में भी ऐसे करके लिखा रहता है, दिस इज नथिंग बट डिनोटिंग द रियल नंबर, जस्ट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम जस्ट आर। आप वर्ड में भी टाइप करोगे, कहीं पे भी रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके लिखा जाता है बुक्स वगैरह में। So this is nothing but representation of real number, but in 2D. You can think of like I am taking 2 inputs. अब इसकी range की बात करेंगे. So range is what? R plus. Positive. Yes. Now it is going to real number, क्योंकि in output क्या दे रहा है, कोई एक ही नंबर दे रहा है ना। You are giving 2 inputs and it is giving you 1 output. So I can represent this like we are getting domain from a plane. Domain is any plane because x y ले रहे हैं, और output क्या निकल रहा है, range क्या हो रहा है, range is from 0 to infinity, like ये वाला हमारा range हो गया, and domain is everything, all x y, right? अगर किसी को कोई confusion है तो पूछ लो, otherwise we can go ahead. So this was my Ma'am, first. can you explain the range point again? See, range is what? It cannot be negative. अगर आप कोई भी 2 इनपुट दोगे, जैसे x को 1 दिया, y को 2 दिया, ठीक है, तो x स्क्वायर, you are getting what? You are getting a number that will be always be a real number and it should be positive, क्योंकि नेगेटिव वाले को भी तो ये पॉजिटिव कर देगा, तो इसीलिए 0, अगर x y 0 0 हो गया तो 0 भी आ जाएगा, बट नेगेटिव वाला अलाउड नहीं है। ये नेगेटिव साइड, we will not get any negative number from this function, ठीक है? इसका आप एक बार जैसे कि Ma'am, could you please repeat domain also? ओके, जस्ट मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ, then I can repeat. Can you see this my MATLAB screen over here? Yes. Yes, ma'am. Yes, sir. Okay. So I have plotted this x square plus y square which is equal to z. ये फिगर वाला स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, मैंने इसको सिर्फ -1 से 2 तक प्लॉट किया, इसीलिए ये मुझे दे रहा है। अब देखो, ये जो है, जो नीचे xy है, this xy is entire plane because I can take input from any xy and my output will be some specific z, right? इस xy के लिए मेरे पास एक z आएगा, इस xy के लिए नीचे देखो एक z आएगा। So
एंड यू कैन सी दैट ये z जो है वो नीचे नेगेटिव नहीं हो रहा है, ये हमेशा 0 के ऊपर है। ठीक है, तो ये रेंज मेरा क्या हो जाएगा, 0, ऑल रियल नंबर 0 के ऊपर, और डोमेन क्या होगा, ऑल एक्स वाई प्लेन। ठीक है, Ma'am, I have a doubt. यस Ma'am, जैसे single variable functions में domain is all values of x and range is all values of y, वैसे ही इसमें domain और range को क्या बोलेंगे? नहीं, डोमेन तो मैंने लिखा हुआ है ना कि दिस इज आर स्क्वायर दैट इज ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि इसमें कोई range भी होगा। वैल्यू, हाँ रेंज यानी कि इसका इमेज कहाँ पे आ रही है आपके, 0 से इंफिनिटी तक ही आएगी। तो नेगेटिव इसमें range is all values of r. नहीं, ऑल नहीं, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ आर इंक्लूडिंग 0। उसमें आप तो एक जर्नलाइज्ड बता रहे हो ना कि डोमेन पूरा हो सकता है, बट फंक्शन के लिए तो वेरी करता है ना डोमेन और रेंज। हाँ, जहां yes, ma'am. हाँ, तो जहां जहां पे भी इमेज मिलेगी, नेगेटिव में इमेज ही नहीं मिलेगी इसको, तो हम उसको रेंज में नहीं कंसिडर करेंगे ना। हो सकता है किसी और अच्छा। फंक्शन के लिए करे, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जर्नल। हो सकता है कि डोमेन किसी का पूरा पूरा आर स्क्वायर आए और रेंज पूरा पूरा आर आ जाए, बट फॉर दिस स्पेसिफिक केस माय डोमेन इज एंटायर एक्स वाई प्लेन एंड बट माय रेंज इज ओनली पॉजिटिव 0 टू इंफिनिटी। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब सेकेंड वाला देखिए, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस, कैन यू टेल? देखो डोमेन क्या होगा, आपको हर एक की इमेज मिलनी चाहिए ना। y शुड बी ग्रेटर देन x स्क्वायर, नहीं तो अगर इससे छोटा हो गया दैट मीन्स दैट इट विल गिव यू नेगेटिव, और नेगेटिव यानी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। सो हमें कॉम्प्लेक्स हमारे रेंज में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी विद इन द रियल नंबर। सो we will see that only we are getting our domain as all xy such that y is greater than x square. So this is our domain. ठीक है, अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज इज व्हाट, रेंज क्या होगा, R plus. r प्लस, ये भी क्या होगा 0 से इंफिनिटी तक, ये वाला पोर्शन रहेगा आपका। सो रेंज इज 0 टू इंफिनिटी। ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Okay, now the third point is 1 by xy. This is my another function and you have to tell me the domain and the range. Ma'am, हाँ, ma'am, in the previous question, while writing domain, we have to write r square equals y is greater than in the whole format, right? you can represent in like this way also, that x comma y such that y is greater than x square. Just you can write like this. This is equal to domain. मैम इसमें ग्राफिकली डोमेन कैसे करें? ग्राफिकली अगर आप डोमेन को दिखाना चाहते हो तो ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे ये x है, ये आपका y है, तो ये जो है ऊपर वाला ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। मतलब पूरा ये जितना भी पैराबोला एक्सटेंड होगा ना, ये जितने भी पॉइंट्स हैं एक्स वाई के, ये सारे के सारे आपको इमेज देते जाएंगे। बट इधर लोगे तब भी इमेज नहीं मिलेगा, इधर लोगे तब भी इमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो इतने इधर में जितने भी पॉइंट्स होंगे आपके, जो भी पेयर एक्स वाई के बनेंगे, ऑल विल गिव यू इमेज इन दिस पोर्शन, पॉजिटिव 0 टू इंफिनिटी। ये क्लियर है कि नहीं? यस Yes, ma'am. अब आपके पास ये क्वेश्चन है, दिस इज योर फंक्शन एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज। Domain will be r square minus 0. Then y should not be equal to 0. X and y is greater than I square minus 0. सिर्फ 0। ये 0 का क्या मतलब हुआ?
मतलब आप कह रहे हो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ना हो, ऐसा बोल रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम इसके अलावा x और y कभी भी 0 इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर कभी नहीं है। हाँ, तो ये अगर ये एक्सिस मुझे हटानी पड़ेगी ना, अगर इसमें से एक भी 0 हो जाए, दिख रहा है? मतलब अगर आप इस एक्सिस में रहोगे तो क्या 0 हो जाएगा उस वक्त में? x 0 हो जाएगा, ये वाला ग्रीन, मैं इसको ऑरेंज से कर देती हूँ। ऑरेंज वाले एक्सिस में अगर आप रहोगे तो इसमें x 0 होगा, कोई भी पॉइंट ले लो। इसकी ठीक है, इमेज क्या मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी ना। Yes, ma'am. अगर मैं इस ग्रीन वाले में चलूं तो इधर y 0 है, क्या इसकी इमेज इधर मिल पाएगी? No, ma'am. नहीं मिल पाएगी। तो मुझे ये ऑरेंज और ग्रीन को नहीं कंसीडर करना है। क्लियर हुआ? मुझे बस इतना इतने का तो मुझे मिल जाएगा, इतना तो अच्छा पोर्शन है, मुझे मिल जाएगा। सबकी रेंज मतलब सबका इमेज मुझे मिल जाएगा, बट ये ऑरेंज वाला और ये ग्रीन वाला मुझे दिक्कत करेगा, क्योंकि हेयर कोई 0 है, मतलब x या y। ठीक है? Yes, ma'am. Ma'am, we can say कि ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा डोमेन का बीच बीच में, जहाँ पे भी लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, तो उसका इमेज नहीं मिलेगा तो फिर हम उसको फंक्शन नहीं बोल सकते ना, मतलब हर एक पॉइंट का आपको इमेज मिलना चाहिए ना। तो डोमेन में क्या लाई करेगा? डोमेन में लाई करेगा, अगर आप मैथमेटिकली लिखोगे तो x, y सच दैट x y इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका डोमेन हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो गई कि x या फिर y 0 ना हो। So this will be your domain. And what about the range? R minus R minus R minus 0, right? इसको मैं काट दे रही हूँ, इसको कंफ्यूज मत करना, जस्ट R minus 0, यानी कि इसमें सारे 0 के अलावा 0 बस छूटा रहेगा, बाकी सबके हमें इमेज मिल जाएंगे, ये 0 बस नहीं होगा इधर। ठीक है? Now fourth, this is another function that is sin xy, ये बहुत बढ़िया फंक्शन है। इसमें बताओ डोमेन क्या होगा? R xy should Square. lie between -1 and -1. डोमेन पूछ रही हूँ। R. R क्यों बोलते हो? अभी मैंने बताया कि 2 इनपुट चाहिए ना, R square. Sorry. R स्क्वायर। R हाँ, square. और रेंज कितना हो जाएगा? -1 to 1. -1 से 1। ठीक है? तो अभी आपको डोमेन रेंज समझ में आ गया कि हाउ कैन यू राइट इन 2 वेरिएबल। ऑब्वियसली जब 3 वेरिएबल हो जाएगा तो R क्यूब लिख के करोगे काम, क्योंकि उसमें आपको 3 इनपुट चाहिए, x y z, ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब वही है, बट इसमें क्या है कि आप 2 इनपुट आपको चाहिए ना, आप एक इनपुट से तो आपका इसीलिए डोमेन कि हाँ हर एक x y के लिए मुझे इमेज मिल जाएगी। और क्या इमेज मिलेगी? जस्ट वो रहेगा -1 से 1 के बीच में। सो नाउ I think that we are clear with domain and range, and now we will move on towards limits. अब अगर आप क्लास 12th में Excuse की me, बात ma'am. कर, हाँ जी Ma'am, why बताइए। do we take R square as domain? Can you tell again? देखो, जब आप R ले रहे थे, that means what? That means that if I have a function like x square, that means that अगर आप मुझे एक नंबर दे दोगे, I have the image, I am just taking input from you, like एक, ऐसे समझो कि इसमें इनपुट क्या होगा आपका, 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, 4 दोगे, आपको पेयर्स में तो नहीं मैं मांग रही हूँ ना इनपुट, आप इनपुट दोगे, मैं आउटपुट आपको बताती जाऊंगी। इसमें क्या आप एक इनपुट मुझे दे के मुझे आंसर मिल जाएगा? आपके पास x भी है, y भी है ना, तो यू हैव टू गिव मी इनपुट इन पेयर्स।
आप मुझे 2 वैल्यू बताओगे 1 2 ऐसे करके कि 1 2 पे बताओ, 3 4 पे बताओ, तब मैं आपको आंसर दे पाऊंगी। वरना आप सिर्फ 1 बताओगे, मैं साइन y बताऊंगी, इसमें मुझे आउटपुट थोड़ी ना मिला। सो आई हैव टू टेक इनपुट इन दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज रिटन। अब ये फॉर्म अलग थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना हमें। अब यही चीज हम ये आर में चल रहा है, मतलब आप एक एक में इनपुट दे रहे हो। आर स्क्वायर यानी कि अब आप 2 मुझे इनपुट दे रहे हो। अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Okay. ठीक है, अब नाउ the concept of limits. So you see that whatever you have studied so far up to class 12th is that we say that a function have a limit L when x approaches to a, when कब कहते हैं कि as a sorry x approaches near a, fx approaches towards 1. So we say that the limit exists. So if we want to see it graphically, suppose करो x is equal to a, ये मेरा है, तो आप क्या करते थे? आप बोलते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, अगर दोनों बराबर हो जाए दैट मीन्स दैट लिमिट एग्जिस्ट। दैट मीन्स दैट कि अगर हम थोड़ा सा x के इधर देखे तो हमारा जो डिस्टेंस रहे इमेज का वो भी L से इर्द गिर्द ही रहे, मतलब पास में ही रहे, एंड इट शुड अप्रोच टुवर्ड्स L, देन वी कॉल दैट द लिमिट एग्जिस्ट। ये ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we will talk about the functions, limits of functions in 2 variable. अब देखोगे कैसे कहानी इसमें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। Now for this we call that xy going to a b fxy is equal to L only। देखो डोमेन मैं फिर से ऐसे ही बना रही हूँ कि एक्स वाई, मुझे इनपुट एक्स वाई में चाहिए, तो इसमें सपोज करो कि ए बी में मुझे देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये मेरा पॉइंट है ए बी। सो इसके लिए मैं क्या करूंगी, आई विल सी दैट ऑल द पॉइंट्स दैट आर इन द नेबरहुड ऑफ ए बी विल हैव द इमेज नियर बाय टू दिस वैल्यू एल। ये इसकी जो इमेज होगी ये भी इसके आसपास ही होनी चाहिए, जो इस गोला मैंने बनाया ना सर्कल, यानी कि इसके इर्द गिर्द के पॉइंट्स जो भी हैं ए बी के, उनकी इमेज जो है इस एल के इर्द गिर्द ही रहनी चाहिए। मैम एल क्या है? एल मेरा लिमिट है ना, मैंने बताया कि आई कैन राइट लाइक दिस, इफ एवरी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ ए बी is very close to L। ये इमेज है ना, समझ रहे हो? ये एक्स वाई प्लेन है जिसमें मतलब मैं इनपुट दे रही हूँ, ये मेरा आउटपुट है जो मैंने एरो बनाया, मतलब मैं ये ले रही हूँ अपने अंदर और ये मैं बाहर निकाल रही हूँ। दैट मीन्स दैट अगर मैंने ए बी के इर्द गिर्द से पॉइंट उठाए हैं तो मेरा जो वैल्यू रहेगी वो भी एल के इर्द गिर्द में रहनी चाहिए। दैट देन आई कैन से दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? When x y is close to a b, then f x y is close to L, then I can say that limit exists. Is this thing clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? Yes, अब देखो प्रॉब्लम मैम क्या है। हाँ किसी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हो आप ये? हाँ हाँ मैं अभी करूंगी, थोड़ा सा वेट करो। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। इस केस में देखो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, यू हैव टू आइदर सी फ्रॉम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि आप सिर्फ एक डायमेंशन में थे।
क्योंकि आप आर में थे, आर में इस पॉइंट की ओर अप्रोच कैसे कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से। आर यू गेटिंग? इसीलिए आप ये निकालते थे, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, आप कहाँ से जाओगे। आपके पास, आप रियल नंबर पे थे तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे ए तक पहुंचने के, आइदर यू कैन गो फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड और यू कैन गो फ्रॉम राइट हैंड साइड। बट इन दिस केस व्हेन यू आर इन प्लेन, इस पॉइंट पे मैं यहां से भी आ सकती हूँ, ऐसे ऐसे घूमकर भी आ सकती हूँ, इधर से भी आ सकती हूँ, ऐसे भी आ सकती हूँ, ऐसे भी आ सकती हूँ। मेरे पास इनफाइनाइट पाथ खुल गए इस ए बी तक पहुंचने के, राइट? Yes, ma'am. अब ये दिक्कत करेगा आपको कि अब लिमिट इतने ढेर इनफाइनाइट आप निकालने बैठोगे, उसमें तो बढ़िया था, लेफ्ट हैंड निकाल लिया, राइट हैंड निकाल लिया, दोनों बराबर, लिमिट एग्जिस्ट। अब इसके पास मैं बोल रही हूँ इनफाइनाइट पाथ है, तो आप एक एक करके थोड़ी ना, इनफाइनाइट तो आप पहुंच ही नहीं सकते कि सब पाथ के लिए देखो बराबर है। तो ये चीज मैं फिर डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज आपका शायद नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया ना, फिर आप लेट से पहुंचोगे उधर भी। तो Yes, इतना ma'am. कंसेप्ट क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, वी विल ma'am. कंटिन्यू दिस ऑन द नेक्स्ट क्लास। मैम हाँ मैम लिमिट्स वाला पार्ट इतने अच्छे से समझ नहीं आता। ठीक है, चलिए मैं अगले क्लास में आपको फिर से कंटिन्यू करूंगी। ठीक है मैम। ओके, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. ओके मैं एंड कर रही हूँ। Thank you, ma'am.